as a consultant to know about the different area under the sales and distribution, and this area is common for all the modules of consultant like STMM, finance module. So as a consultant to know about this area only: sales organization, distribution channel, division, and you know this area combination called sales area. Sales area. Yeah. Sales organization is topmost level of the organization in the sales and distribution. Distribution channel, the channel through which the product reach to the customer and end customer like dealer, retailer, wholesaler. These are best example of distribution channel. A division is a product line, like different kind of product we can keep in the different division. Like some product is a household product, like domestic product, we keep in the one division. Division one is only based on household. Another division we have high tech product, food division, beverages division, like we can say cosmetic division, electronic division. So different divisions we can have a different product. So these three combination called sales area. So this sales area is very important in the sales and distribution. This sales area is connected to the customer master plus material master also, and pricing. That is important. And apart from this, sales office, the sales office is a geographical location of sales organization. You can say branch office. From there, the sales process is being processed. And sales group, like the group of employee and for the particular product under the division called sales group. Like some product which under the household division we have 4 or 5 employees. That is one division, one sales group. Okay. So under the sales group we have employee assigned. And apart from that, you can see, Roshan, we have a company code. Company the yeah, I know, sir. Yeah, I know, sir. You know what the meaning of company? Company is a company structure for. What the company structure means the what the role of company in this enterprise structure? Sir, can I speak Hindi? You whatever you can comfortable you can take. Yeah, sir. So सर ये एक तरह की जो कंपनी होती है उस कंपनी में मतलब हर तरह के ये होता है, मतलब क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं, एक तरह से कंपनी एक चीज होती है, उसके अलग अलग तरह के रिसाइकिल मतलब ये होते हैं सर, एरियाज होते हैं, प्लांट किधर होता है, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम बोल रहे हो जानते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा नॉलेज ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कंपनी क्या होता है। कंपनी होता है कॉर्पोरेट ग्रुप, ठीक है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल हिंदी में भी बता रहा हूँ। कंपनी होता है कॉर्पोरेट ग्रुप, है ना। कॉर्पोरेट ग्रुप का काम क्या होता है, सिर्फ वो पेपर में उनका ये रहता है, नाम रहता है। ये जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है ना, उनके अपने कुछ ये होते हैं, शेयर स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, है ना। ये कॉर्पोरेट ग्रुप होता है। इस कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर में बहुत सारे कंपनी कोड होती हैं। जैसे कि टाटा का ही ले लो, रिलायंस का ले लो, और या बिरला का ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो। तो जैसे टाटा का ही एग्जांपल ले लो, तो टाटा के बहुत सारे कंपनी कोड है। टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा रिटेल में है वेस्ट साइड, टाटा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में है, टाटा ताज होटल, टाटा इसमें है, एविएशन में है। तो तुम्हारा ले लो, अभी तो इंडिया ये ले लिया है, एयर इंडिया टाटा के पास है, सॉफ्टवेयर है, TCS है। तो ये सारे कंपनी कोड होते हैं। तो ये कंपनी कोड सबका अपना अपना ये होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उनका अपना अपना खुद का बैलेंस शीट होता है, उनका अपना बिजनेस प्रोसेस होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो टाटा स्टील के साथ मर्ज है, नहीं, उसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं, एक ही कंपनी कोड के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे टाटा का ही कोई एग्जांपल ले ले, तो हम टाटा मोटर्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये सारा एरिया जो है एक्चुअली फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल, उनका काम होता है कंपनी और कंपनी को डिफाइन करना। और कंपनी को ऐसे ही नहीं डिफाइन करना, उसके अंदर बहुत सारे एरिया जो उनको बनाना पड़ता है, जिनके प्रॉफिट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, GL अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट, ये सारे अलग अलग एरियाज उनको बनाना रहता है। उसके अंदर बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं, बिजनेस एरिया होते हैं, कंट्रोलिंग एरिया होते हैं, ये सारा फाइनेंस के अंदर होता है। तो हम उस पर उतना नहीं जाते हैं, हमको सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। लेकिन हम चूंकि उस पर डिपेंड है, यानी कंपनी कोड के अंदर ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो हमारा काम अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना रहता है, इंटीग्रेट करना रहता है, किसके साथ, कंपनी कोड के साथ, ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर हम बिजनेस प्रोसेस करते हैं, सेल्स प्रोसेस करते हो, तो तुम ऑर्डर क्रिएट करते हो, ठीक है। ऑर्डर क्रिएट करते हो तो प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर्ड होता है,
प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर्ड होता है? प्रोडक्ट डिलीवरी होता है सेल्स एरिया से। प्रोडक्ट कहाँ पे रहता है? सेल्स एरिया में प्रोडक्ट आपका स्टोर में रहता है सर। स्टोर को क्या बोलते हैं? स्टोर स्टोर को वेयर हाउस, स्टोरेज लोकेशन। वेयर हाउस बोलते हैं सर। हाँ ठीक है, हाँ, स्टोर लोकेशन वो वेयर किसके हाउस। किसके अंडर में आता है, किस मॉड्यूल के अंडर में आता है? एमएम मॉड्यूल के अंदर में आता हाँ, है सर। जैसे कंपनी कोड फीको के अंडर में आता है, उसी तरह ये एमएम के अंदर में आता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, हमारा जो एरिया है ना सेल्स का, वो इंटीग्रेटेड किससे किससे है? फाइनेंस के साथ भी है, इंटीग्रेटेड किसके एमएम के साथ है? साथ। मटेरियल मैनेजमेंट के साथ भी है, सारे इंटीग्रेशन। तो हम सब हमको मालूम है एसएपी का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है? इट्स इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है ना, इंटीग्रेटेड है, सारे मॉड्यूल एक साथ इंटीग्रेटेड है। तो अगर हम सेल्स में हैं तो हम जो ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के साथ। तो जब भी हमको ऑर्डर कंफर्म करना रहता है तो हम सिस्टम चेक करता है कितनी क्वांटिटी है कि नहीं। तो वो क्वांटिटी कहाँ पे है? मटेरियल मैनेजमेंट में। तब जो क्वांटिटी है तो ही ऑर्डर कंफर्म होता है, नहीं तो ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा। बिल्कुल सर। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद वहां से डिस्पैच होता है, पिकिंग होता है, पैकेजिंग होता है, फिर फाइनली पोस्ट गुड इशू होता है, यानी गुड इशू होता है, यानी सिस्टम में दिखाता है कि वहां से प्रोडक्ट निकल गया, अब ट्रांजिट हो रहा है, अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? बिलिंग। बिलिंग क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस है ना, ओटीसी का, ऑर्डर मैनेजमेंट का सबसे लास्ट स्टेप है बिलिंग। तो बिलिंग में हम क्या करते हैं? हम जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ उसकी बिलिंग डॉक्यूमेंट हम कस्टमर क्लाइंट को, कस्टमर को भेजते हैं, उस वो पेमेंट करता है। वो पेमेंट कहाँ जाता है? फाइनेंस के पास आता हाँ, फाइनेंस के पास जाता है। तो यहाँ फिर से हम इंटीग्रेटेड है, इसलिए फाइनेंस के अंदर वो पोस्टिंग हो जाता है। है। यही सेल्स प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है कि हम इस प्रोसेस में हम इंटीग्रेटेड विद फाइनेंस मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड विद मटेरियल मैनेजमेंट है। तो ये ओटीसी का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ओटीसी प्रोसेस के लिए हम बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एचडी में। जैसे हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कस्टमर मास्टर बनाते हैं, मटेरियल मास्टर बनाते हैं, प्राइसिंग बनाते हैं। देखो यहाँ कस्टमर मास्टर है, मटेरियल मास्टर है, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड है, कंडीशन मास्टर। कंडीशन मास्टर मतलब प्राइसिंग, प्राइसिंग डिफाइन करते हैं। अलग अलग कस्टमर के अलग अलग प्राइसिंग है, अलग अलग एरिया के अलग अलग प्राइसिंग है, प्रोडक्ट वाइज प्राइसिंग है, कस्टमर वाइज प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अलावा बहुत सारे और भी हैं, डिस्काउंट है, चार्जेस हैं, टैक्स है, ये सारा हम प्राइसिंग प्रोसीजर में करते हैं। ठीक है, और आउटपुट मास्टर डेटा क्या होता है रोशन? आउटपुट मास्टर डेटा होता है हमको प्रिंट आउट लेना है ना, सेल्स डॉक्यूमेंट का, बिलिंग डॉक्यूमेंट का, डिलीवरी डॉक्यूमेंट का, तुम ये आउटपुट मास्टर डेटा से करते हैं। क्लियर? ये सारे मास्टर हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या जानना है? सेल्स प्रोसेस एज ए कंसल्टेंट टू नो अबाउट द सेल्स कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सेल्स साइकिल में हम स्टार्ट फ्रॉम इंक्वायरी इन विथ बिलिंग। ये इस प्रोसेस को करने के लिए we do lots of integration, lots of configuration, and then we are depend on other module, so we have to know what are the integration part of other modules। ठीक है, हम दूसरे मॉड्यूल के साथ जब कनेक्टेड है तो उसमें हमारे डिपेंडेंसी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ये जानना रहता है। ठीक है, तो अभी हम जब भी सेल्स प्रोसेस करेंगे उसके बैकएंड में, अभी जैसे तुम इंड यूजर हो, तुमको तुम्हारा काम है ऑर्डर क्रिएशन करना। ठीक है, लेकिन ऑर्डर क्रिएशन करने के लिए तुमको क्या क्या चीजें चाहिए रहती है? सेल्स डॉक्यूमेंट क्या है? ऑर्डर है, उसका सेल्स एरिया क्या है? हाँ, ये है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन है, कस्टमर कौन है, मटेरियल कौन है, कौन से प्लांट से बिलोंग करता है मटेरियल, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है कस्टमर का, क्वांटिटी कितनी है, बिलिंग उसका क्या है, और डिलीवरी डेट क्या है। ये सारा जो फ्रंट एंड में आउटपुट आता है उसका हम लोग बैक एंड में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तब जाके वो आउटपुट आता है। तो इसमें डिफरेंट सेल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि इंक्वायरी है, कोटेशन है, ये प्री सेल्स डॉक्यूमेंट है, यानी सेल्स से पहले जो डॉक्यूमेंट होता है इंक्वायरी कोटेशन होता है। फिर सेल्स है, सेल्स में भी बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है, कैश सेल्स है, फिर जैसे कोई कस्टमर ने कंप्लेंट किया तो उसका रिटर्न ऑर्डर है, आउटलाइन एग्रीमेंट, ये भी एक सेल्स डॉक्यूमेंट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट को हमको जानना है, उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंगली, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हम जो आउटपुट देना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में हम करते हैं। ठीक है रोशन? और उसमें भी सेल्स डॉक्यूमेंट में हमको अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, कैश सेल्स, रश ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, ये सारे सेल्स डॉक्यूमेंट है। इस सेल्स डॉक्यूमेंट का 3 लेवल होता है, हेडर डेटा लेवल होता है, आइटम डेटा लेवल, शेड्यूल हैंड डेटा लेवल। ठीक है, हेडर डेटा लेवल कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लिए होता है, पूरा डॉक्यूमेंट का डिपेंडेंसी उस हेडर डेटा पे होता है कि कस्टमर कौन कौन है, उसके डॉक्यूमेंट करेंसी वैल्यू क्या है, उस कौन से करेंसी में ऑर्डर कर रहा है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है उसका, ये सारा हेडर डेटा पे होता है। ठीक है, कस्टमर का सेल्स एरिया क्या है,
कस्टमर की प्राइसिंग क्या है, ये सारे हेडेड डेटा पे होते हैं। आइटम डेटा पे क्या होता है, प्रोडक्ट, मटेरियल क्या है, मटेरियल का कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हो रही है, उसकी नेट वैल्यू क्या है, वो मटेरियल कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, कौन से शिपिंग पॉइंट से वो मटेरियल डिस्पैच होगा। तो ये सारा आइटम डेटा पे डिटेल्स होता है। शेड्यूल लाइन डेटा पे क्या होता है, डेट ऑफ डिलीवरी, कस्टमर को कौन सी डेट को डिलीवरी होना है, वो एक टाइम वन टाइम डिलीवरी है कि पार्शियल डिलीवरी। मान ले कि 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर किया कस्टमर, उसको वन टाइम डिलीवरी चाहिए तो एट ए टाइम 100 प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा, या पार्शियल डिलीवरी चाहिए 2 टाइम 50-50 क्वांटिटी। अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, शेड्यूल लाइन डेटा में हम चेक करते हैं कि डेट ऑफ डिलीवरी जो हमने मेंटेन किया है, क्या वो डिलीवरी डेट को हम डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। बैक एंड प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। उस पर हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट का डिलीवरी कब होगा, 10 दिन के बाद होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो 2 दिन 3 दिन आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। ये सारा शेड्यूल लाइन डेटा पे एरिया पे काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह डिलीवरी डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी डॉक्यूमेंट भी हेडर डेटा, यानी कस्टमर कौन है और कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट में होता है। बिलिंग डॉक्यूमेंट में भी वही है, हेडर डेटा यानी कस्टमर कौन है, उसकी बिलिंग में कौन सा प्रोडक्ट की बिलिंग है, क्या क्या कंडीशन टाइप्स उसके अंदर, ये बिलिंग डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं। क्लियर। यस सर। हाँ, फिर मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है बैकबोन, कह लो एक तरह से एसएपी एचडी का बैकबोन है। ये क्या है, प्राइसिंग। प्राइसिंग के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सेल्स प्रोसेस ही नहीं होगा। तो प्राइसिंग में भी हमको बहुत सारे कंडीशन टेक्निक होते हैं, कस्टमर वाइज प्राइसिंग है, मटेरियल वाइज प्राइसिंग है, सेल्स एरिया वाइज प्राइसिंग है, कंट्री वाइज प्राइसिंग है, डोमेस्टिक प्राइसिंग है, एक्सपोर्ट प्राइसिंग है, अलग अलग प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अंदर अलग अलग कंडीशन टेबल्स होते हैं, टेबल्स यानी फील्ड, जो फील्ड के बेसिस पे हम सिस्टम पिक करता है प्राइसिंग वैल्यू। एक्सेस सीक्वेंस होते हैं, कंडीशन टाइप होते हैं, ये सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग करते हैं। उसी के बाद हम आउटपुट देते हैं कि ये कंडीशन टेबल के बेसिस पे जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया हो कि नहीं, कंडीशन रिकॉर्ड VK11 यूज किया ट्रांजेक्शन कोड। नहीं सर, कभी यूज हाँ नहीं किया। हाँ, तो VK11 जो ट्रांजेक्शन कोड होता है, उस पे हम एज ए कंसल्टेंट तो हमारा काम नहीं रहता है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल काम क्या रहता है, उस कंडीशन रिकॉर्ड में कौन सा कस्टमर है, कौन सी मटेरियल है, उसकी प्राइसिंग वैल्यू क्या है, वो मेंटेन करते हैं। उसी के बेसिस पे जब भी वो कस्टमर ऑर्डर क्रिएट करेगा, वो प्राइस ऑटोमेटिक वहां से कंडीशन रिकॉर्ड से सेल्स ऑर्डर पे ले लेता है। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो कंडीशन रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आ जाओ, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे पार्टनर डिटर्मिनेशन, कस्टमर कौन है, कस्टमर जो ऑर्डर करता है वो कौन है, वो सोल्ड टू पार्टी कहलाता है। कस्टमर जो मटेरियल रिसीव करता है वो शिप टू पार्टी कहलाता है, जो कस्टमर जो पे करता है वो बिल टू पार्टी कहलाता है। तो यह पार्टनर डिटर्मिनेशन हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आउटपुट डिटर्मिनेशन में क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रिंट आउट है, फैक्स है या ईमेल है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये एचडी प्लस अबैप के साथ बैठ के हम लोग काम करते हैं। टेक्निकल वाले काम वो करते हैं, फंक्शनल वाले हमारा काम है। मटेरियल डिटर्मिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है मटेरियल डिटर्मिनेशन का, कि बहुत सारे मटेरियल्स है सिस्टम में, लेकिन बहुत सारे मटेरियल आउटडेटेड हो गए या मटेरियल चेंज हो गया है, मटेरियल का नेम चेंज हो गया है या वर्जन नया आ गया है। तो हमको तो मालूम नहीं है एज इंडिविजुअल कि कौन सा मटेरियल का नेम चेंज हो गया है या वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम वो करते हैं मटेरियल डिटर्मिनेशन, यानी स्वैपिंग, यानी जो मटेरियल ऑर्डर किया उसके बदले कोई और मटेरियल को हम ऑर्डर पेज पे लाना, तो मटेरियल डिटर्मिनेशन पे होता है। क्लियर। फिर प्रोडक्ट प्रपोजल, आइटम प्रपोजल है। आइटम प्रपोजल मतलब क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कस्टमर एक ही तरह का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, तो हम को बहुत सारा टाइम लगता है ऑर्डर क्रिएट करने में। हम मान लो कि 100 different material he's ordering on the same time, so we calling all 100 products the same order page, it takes lots of time. So why not we can add this all 100 products in one area called item proposal, यानी item proposal वो 100 प्रोडक्ट हम ऐड कर दिए, 100 अलग अलग प्रोडक्ट, तो हम वहां से पिक कर सकते हैं और ऑर्डर पेज पे ला सकते हैं। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। ये आइटम प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तुम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो जरूरी है और तुम नहीं मेंटेन करते हो, तो सिस्टम नहीं अलाउ करता है तुमको कि नहीं, जब तक ये मेंटेन नहीं करोगे ये एज ए इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो ये इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अवेलेबिलिटी चेक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हम इंटीग्रेटेड है एमएम के साथ, है ना, मटेरियल मैनेजमेंट के साथ। हम ऑर्डर तो क्रिएट करते हैं, लेकिन कंफर्म क्वांटिटी कहाँ से होता है, मटेरियल मैनेजमेंट से होता है कि उतनी क्वांटिटी है कि नहीं। अगर उनके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है, ऑर्डर क्रिएट हो गया लेकिन डिलीवरी नहीं होगा, डिलीवरी क्रिएट नहीं होगा, तो ये अवेलेबिलिटी चेक ये अलर्ट मैसेज देता है कि इतना क्वांटिटी अगर अवेलेबल है तभी डिलीवरी कंफर्म होगा, अदरवाइज डिलीवरी नॉट कंफर्म।
क्लियर। फिर क्रेडिट बिल्कुल मैनेजमेंट आ जाओ। क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या होता है कि कस्टमर को हम क्रेडिट देते हैं या उसके ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, अगर वो रेगुलर ट्रांजैक्शन करता है, उसका पेमेंट नीट एंड क्लीन है और उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छा है, तो हम उसको क्रेडिट लिमिट ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। वो क्रेडिट बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसका क्रेडिट टाइम, जब वो बिलिंग होता है तो उसको एक टाइम पीरियड देते हैं, 15 डेज 30 डेज, उसके बाद वो पे करता है। वो क्रेडिट मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। नंबर रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी कोई सेल्स ऑर्डर, इंक्वायरी, कोटेशन या बिलिंग या डिलीवरी जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, तो एक सिस्टम एक नंबर जनरेट करता है, वो नंबर रेंज में डिफाइन होता है। क्लियर। हाँ, उसके अलावा शिपिंग में भी बहुत सारे एरिया है। शिपिंग चूंकि लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के अंडर का मॉड्यूल है, एली मॉड्यूल है ना, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हमको भी जानना है। डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या होता है, रिटर्न डिलीवरी क्या होता है, शेड्यूल लाइन किसको कहते हैं, शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन किसको बोलते हैं, सिस्टम कैसे शिपिंग पॉइंट को पिक करता है, स्टोर लोकेशन कैसे सिस्टम फाइंड करता है, वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको शिपिंग में भी जानना है। डिलीवरी में भी अलग अलग टाइप के डिलीवरी डॉक्यूमेंट है, स्टैंडर्ड डिलीवरी है, रिटर्न डिलीवरी है, कुछ डिलीवरी होता है विदाउट ऑर्डर, डिलीवरी विदाउट ऑर्डर रेफरेंस, है ना। डिलीवरी विदाउट ऑर्डर रेफरेंस यानी कि उसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट डिलीवरी, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ गुड्स दे रहे हैं ना, फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिलीवरी जिसको बोलते हैं, स्टॉक ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह स्टॉक ट्रांसफर होता है, उसको रिप्लेसमेंट डिलीवरी कहते हैं। उसी तरह बिलिंग आ जाओ। बिलिंग में भी अलग अलग टाइप के बिलिंग डॉक्यूमेंट है। बिलिंग में भी बिलिंग प्लान्स होते हैं, टर्म वाइज पेमेंट यानी मंथली पेमेंट हो रहा है, जैसे कुछ कंपनी लीज एग्रीमेंट और रेंटल वाले सर्विस यूज करती है, तो उसमें पीरियडिक बिलिंग होती है, माइलस्टोन बिलिंग होती है जो वन टाइम पेमेंट होता है। तो ये सारे बिलिंग का कॉन्सेप्ट हमको जानना है। बिलिंग में भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग होता है और डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग होता है, और एक होता है इंटर कंपनी बिलिंग। अच्छा, ये बिलिंग में अगर काम किया हो तो ये दोनों में डिफरेंस जानते हो क्या होता है, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग और डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग? ये डिलीवरी रिलेटेड लिंक है सर, जो हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, हाँ, ठीक है। और ये प्रोवाइड नहीं, ऑर्डर प्रोडक्ट रिलेटेड है। हाँ, प्रोडक्ट डिलीवर करते मतलब तब हम हाँ बिलिंग करते हैं, ऑर्डर रिलेटेड हाँ बिलिंग हाँ हाँ। और ऑर्डर डिलीवरी बिलिंग जब कस्टमर जब ऑर्डर करता है सर, उसका टोटल जो क्वांटिटी होता है वो बिलिंग है ये। नहीं। ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग उसको बोलते हैं जो सर्विस से रिलेटेड होता है। सर्विस तो हम डिलीवर नहीं करते ना, सर्विस तो इंटेंजिबल है, सर्विस प्रोडक्ट है लेकिन इंटेंजिबल, उसको हम देख नहीं सकते। तो हम जब सर्विस देते हैं कस्टमर को, जैसे सर्विस ऑर्डर क्रिएट होता है तो डायरेक्ट बिलिंग होता है, उसमें कोई डिलीवरी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे रिपेयर वर्क है ना, कोई कस्टमर का कोई रिपेयरिंग वर्क, रिपेयरिंग के लिए वो सर्विस का ऑर्डर आया, यानी हमने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया था उसमें कुछ अगर उसको रिपेयरिंग चाहिए, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या चार्जेबल है जो भी हो, तो सर्विस ऑर्डर क्रिएट होगा, तो उसके बाद डायरेक्ट बिलिंग होगा, उसमें कोई डिलीवरी नहीं, सर्विस की कोई डिलीवरी नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग। डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग जो हम प्रोडक्ट डिलीवर किए वो उसकी डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग होगा। इंटर कंपनी बिलिंग किसको बोलते हैं, एक कंपनी के अंदर दो कंपनी कोड है, टाटा मोटर्स है और टाटा स्टील है। मान लो कि टाटा मोटर्स के पास कोई एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, लेकिन वो प्रोडक्ट टाटा मोटर्स के पास नहीं अवेलेबल है, वो टाटा स्टील के प्लांट में अवेलेबल है। तो टाटा मोटर्स क्या बोलता है टाटा स्टील को कि यार तुम मेरा प्रोडक्ट, टाटा स्टील तुम मेरा ये प्रोडक्ट तुम कस्टमर को डिलीवर कर दो। तो टाटा स्टील जो है वो अपने प्लांट से वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है कस्टमर को, और टाटा मोटर टाटा स्टील के बीच में बिलिंग होता है, उसको बोलते हैं इंटर कंपनी बिलिंग। वो बिलिंग होता है कॉस्ट प्राइस पे, है ना, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, कॉस्ट प्राइस पे बिलिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ये भी एक तरह से ऑर्डर मैनेजमेंट है, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी सेल्स प्रोसेस। जैसे एक सिंपल प्रोसेस है ऑर्डर इंक्वायरी कोटेशन ऑर्डर्स डिलीवरी एंड बिलिंग, इसी तरह इंटर कंपनी सेल्स प्रोसेस होता है, कंसाइनमेंट सेल्स प्रोसेस होता है, थर्ड पार्टी सेल्स प्रोसेस होता है, ये भी एक ऑर्डर मैनेजमेंट है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट जानना है। थर्ड पार्टी ऑर्डर जैसे अभी मैंने बताया कि अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी कस्टमर ने किया लेकिन वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि वेंडर मेरा वेंडर है, वो वेंडर डिलीवर करेगा, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑर्डर, यानी कि प्रोडक्ट हम नहीं डिलीवर करके मेरा वेंडर डिलीवर कर रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं आउटसोर्सिंग, यानी थर्ड पार्टी से हम प्रोडक्ट लेके हम दे रहे हैं कस्टमर को। कंसाइनमेंट सेल्स प्रोसेस है, ये भी एक तरह का स्पेशल सेल्स प्रोसेस बोलते हैं। कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को डीलर के प्लेस पे रख देती है और वहां से सेल करने शुरू कर देती है। उस कॉन्सेप्ट को कंसाइनमेंट सेल्स प्रोसेस करते हैं। इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर भी वही होता है
कि कस्टमर का ऑर्डर हम रिसीव तो करते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं एमएम में, परचेज ऑर्डर। फिर परचेज ऑर्डर वेंडर को जाता है, वेंडर मटेरियल को डिलीवर करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। स्पेशल टॉपिक में है रिबेट कॉन्सेप्ट है। रिबेट एक तरह से डिस्काउंट होता है, लेकिन आफ्टर बिलिंग होता है ना। बिलिंग के बाद हम जो कुछ अमाउंट कस्टमर को देते हैं उसको बोलते हैं रिबेट अमाउंट, है ना। वो प्रोसेस हमको जानना है। इंटीग्रेशन में हमको क्या क्या जानना है, एफआई के साथ इंटीग्रेशन क्या है ना। फाइनेंस मॉड्यूल के साथ हम इंटीग्रेट, जैसे क्रेडिट मैनेजमेंट है, अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक है। जब बिलिंग करते हैं ना, तो बिलिंग का अमाउंट जो पोस्टिंग होता है वो जीएल में कैसे पोस्टिंग होता है, वो अकाउंट डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये इंटीग्रेशन टॉपिक है। एमएम के साथ इंटीग्रेशन है, थर्ड पार्टी सेल्स में हम एमएम के साथ इंटीग्रेटेड है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको जानना है, ठीक है। और एसएप मेथोडोलॉजी एक तरह से मेथोडोलॉजी है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। उसमें हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम एज ए कंसल्टेंट हमारा रोल क्या है प्रोजेक्ट में, ठीक है। वो हम तुमको अभी 1 मिनट में दिखाते हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, एज ए इम्प्लीमेंटेशन टीम में हम जब शामिल होते हैं, तो हम ये मेथोडोलॉजी को समझना रहता है कि जब भी प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट की तरफ से, तो हम उस पर ये फेज पे काम करते हैं। फेज 1 प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, यानी क्लाइंट विजिट होता है, इनिशियल प्लानिंग होता है, प्रोजेक्ट क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस को समझते हैं, उनसे नेगोशिएशन होता है, और बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है उनका, और उनको ड्यूरेशन कितना चाहिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, रिसोर्सेज कितने चाहिए, कॉस्ट कितना है, ये सारा इनिशियल फेज का प्लानिंग होता है। इनिशियल फेज की प्लानिंग होती है। फिर क्लाइंट अपना बिजनेस ब्लूप्रिंट देता है। बिजनेस ब्लूप्रिंट यानी उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसके कितने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कस्टमर्स कितने हैं, उसके मटेरियल्स कितने हैं, उनका प्रोसेस क्या है, बिजनेस प्रोसेस क्या है, इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, ये सारे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस। उसके अलावा उनका कोई कस्टमाइजेशन है कि नहीं, वो सारा बिजनेस प्रोसेस हम बिजनेस ब्लूप्रिंट में समझते हैं। उस प्रोसेस के बाद हमको जब हमको ये पता चलता है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो एसएपी स्टैंडर्ड से नहीं मैच कर रही है, ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एज इज टू बी कॉन्सेप्ट। एज इज मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, टू बी सेम वही उसको डिलीवर्ड होना चाहिए, तो हम इसमें चेंजेस करवाते हैं एसएपी स्टैंडर्ड सिस्टम में। वो चेंजेस कौन करता है, टेक्निकल कंसल्टेंट करता है, अबैप, है ना। तो ये चेंजेस के बाद ही क्लाइंट बोलता है कि नहीं अब ठीक है, इस पे हमको यही रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है इस चेंजेस के ऊपर, अब इस पे स्टार्ट कीजिए प्रोजेक्ट। तो हम ये प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन फेज में, जहाँ पे हम इस कस्टमाइजेशन अनकॉन्फिग्रेशन करते हैं। फिर उसमें तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर एक फाइनल टेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्ट हम क्लाइंट को नहीं भेजते हैं, उससे पहले टेस्टिंग होता है, फाइनल प्रिपरेशन, तो उस पर टेस्टिंग होता है। उसमें एक क्लाइंट भी रहता है, क्लाइंट टेस्टिंग फेज में रहता है, उसमें चेक करता है, उसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। जब क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है कि जो भी हमने बनाया वो सही है, फिर उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसको हम हैंड ओवर टू द क्लाइंट सर्वर कर देते हैं, क्लाइंट सर्वर पे वो चला जाता है, गो लाइव हो जाता है। उसके बाद हम सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट यानी कि जब कोई इशू आता है, यानी कि कोई भी सेल्स प्रोसेस में उसको कोई डिफिकल्टीज है, कुछ प्रोसेस में स्टक हो गया या एरर आ रहा है, तो हम उसको सपोर्ट में सब रिजॉल्व करके देते हैं। क्लियर रोशन? यस सर। अब बोलो तुम्हारा कोई कौन क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन यही है सर, जब कस्टमर को किसी भी तरह की एरर्स आती है, हम्म उसको रिजॉल्व करने वाला जो प्रोसेस है सर, हम्म वो एबअप करती है कि नहीं, हम करते जो हैं। एसडी के जो कंसल्टेंट। टेक्निकल वाले अवेप करते हैं, जो टेक्निकल, जैसे किसी टेबल्स में एरर है, टेबल्स स्टैंडर्ड या कस्टमाइज टेबल्स में कुछ इशू आ रहे हैं, डिबग आ रहा है, वो अवेप हाँ करते हैं। एसडी वाले फंक्शन वाले पे करते हैं, है ना। और उसमें भी लेवल होता है, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि सपोर्ट में कौन से लेवल पे काम कर हाँ, रहे हो। जी सर, जी हाँ सर, जी हाँ, सर। L1 L2 L3 होता है। L1 होता है हम्म। सिवियरिटी लेवल हाई रहता है, L2 मीडियम होता है, L3 लो होता है। उसमें भी टाइम ड्यूरेशन होता है। मान लो L1 हम हायर लेवल पे हैं, तो उसमें विद इन 4 आवर्स में सॉल्व करके देना कि उनका प्रोडक्शन सर्वर डाउन हो रहा है, उसकी वजह से उनका बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, तो हमको तुरंत इमीडिएट सॉल्व करना है। हम टिकट रिसीव करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस करते हैं, फिर उसके बाद इन प्रोसेस करते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। जब वो रिजॉल्व हो जाता है तो क्लाइंट को भेजते हैं, फिर क्लाइंट का एक्सेप्टेंस लेते हैं कि वो सही हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तब हम टिकट क्लोज करते हैं, नहीं तो ओपन ही रहता है, ठीक है। ये सारे टिकट पे काम होता है। तो उसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि हाँ सर। जैसे मान लो कि कोई टिकट आया तुम्हारे मेल पे आया या टिकटिंग टूल पे आया, तुमको देखना रहता है कि हाँ सर, तुम्हारे इसके बारे, हाँ
इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है सर, इसके बारे हाँ, टिकट के बारे, बस जो वही टिकट है। रेस होता है, हाँ 3 तरह के टीम्स होते हैं, हाँ, तीनों टेक्निकल L1 L2 टेक्निक L3। हाँ, उसमें पता रहता है हम्म। किसका कौन सा टिकट है, उसको अलॉट हो हाँ। जाता है। वो तुमको ये नहीं कि ये सर। टेक्निकल वाला है तो तुमको आ गया, नहीं, वो तुम्हारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तुमको मिल जाता है। हाँ, इसमें है कि तुम्हारे ऊपर हम्म। सीनियर हैं तो उनको टिकट आया, तुमको वो दिए, तुम अगर नहीं सॉल्व कर पाए, अगर जूनियर कंसल्टेंट हो तो फिर वो सॉल्व करके भेजते हैं। ठीक है, ये था। क्लियर। हम्म। और कुछ क्वेश्चंस? नहीं सर, वो Hello, धीरे Ravi. धीरे अब। Hello, Ravi. Please unmute your mic. Ravi, if you have any doubts, you can ask from the trainer. और रवि भी एक कैंडिडेट हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. या टेल मी Yeah, रवि। Ravi. Yes, sir, Ravi. Ravi, you have any doubt, you can ask from Mr. Shazad. You got the concept clear, Ravi? You are Like, listening, I think. yes, sir. But from middle of the subject I have started, sir. Little bit I get it. हाँ, Main thing was it's a completely functional mode or non-technical. Sorry, technical mode or functional mode, sir. This is a complete source of subject. functional. We are the function side. Functional Ravi. mode is especially you have mentioned the credit management is there. Previous slide, I think. हाँ, End of the. Yes. Can you change it, sir? Credit management, actually, that is the integration of two modules, SD plus MM. Sorry, FI. See, you can see. Okay. What you have tell exactly the credit manager present where I am working with the same credit management role only, sir, in NBFC banking. Okay. But you need SAP or non-SAP? What you have tell sales model and same as credit management means giving credit or analyzing the credit, sir. Giving credit to the candidate customer based on their business transaction, and we have some risk factor also, high risk, low risk, medium risk. Based on that, we provide the credit limit. Like suppose you are a new customer, for me you are a high risk, so we'll give you less credit limit. Like that. Okay. You are a existing customer, regular customer. Based on your transaction, we'll give you more credit. So you are in my low risk category. So based on that, we provide the credit. So this concept is integrated between two modules, FI with SD. Okay, FI consultant will do the credit related activity like credit control area, which is handle all the credit limit to the different limit customers. of client. That's what. Like client means customer, dealer, distributor. Yes, exactly. The customer or whatever it may. Yeah, terms of payment like 15 days, 30 days, 45 days. Limit of customer and previous of year of purchasing order, all the Yes, things we correct, got to analyze and 100%. give the credit for Yes. concern limit. Yeah, you're right, Ravi. Okay, sir. Remaining on is there a first PPT, sir, from beginning on document? First page side. Yes. Which area, Ravi? First, sir. First half. Yeah. 2, 1, 2, 3. Enterprise structure. Sorry. This one. I think we're talking about. Yes, sir. In SAP module, what you have explained previously, I didn't get it. Meanwhile, credit criteria, company, program, plant. I'll repeat again. Ravi, credit control area, company, controlling area, company. These are under the finance module. Okay. Finance and controlling module. Our area under the sales and distribution to know the sales organization, distribution channel, division, sales office, and sales group. That's all. And sales organization responsible for sales activity, selling the product through the distribution channel. The distribution channel is a channel through product is to the customer, like dealer, retailer, wholesaler. Division is a product line. Product line, like we have different kind of product we can keep in the different division like this. And sales office is a branch office of the sales organization. And sales group under the sales office, we have a different group of employees working for the division that is called sales group. So these areas we come under the sales organization, but we are